प्रणाम। मैं अश्विनी अग्रवाल, अश्विनी भगवान के नाम से भी मुझे लोग जानते हैं, और निश्चलिज्म की बात हम लोग कर रहे हैं पिछले कुछ सालों से। इनफैक्ट वीडियोस तो अब बनने शुरू हुए हैं, पर निश्चलिज्म की बात तकरीबन 1995 से चल रही है। और निश्चलता का पसारा यानी चीटिंग फ्री वर्ल्ड, यानी प्रिपेयर योरसेल्फ और प्रिपेयर माई सेल्फ दैट आई शुड नॉट गेट चीटेड एंड यूज टेक्नोलॉजीज टू improve yourself to a level that, or build a shield around you to ensure that you don't get cheated. Because if you get cheated, then you feel very, very bad. If you get looted, you will feel bad only for a while. But if you get cheated, that's a very, very deep impression placed in the body, which keeps disturbing that what was the mistake I did, because of that I got cheated. I could not understand the intentions of the other person, or what was the reason that I got cheated. I feel cheated. Cheating is a very, very bad word, I would say. So to create cheating free at least human race across planet Earth, we decided, of course, I got cheated once, and we become a group of people who got cheated once, and they wanted to create a system which at least permits me to tell that whether I am getting cheated or I am getting what I want without getting cheated. So we started working on that technology, and we understood that there is a technology called Faucology. The name was given by our team, I would say, but the branches covered by Faucology, the messages, the subject, the information, the Gyan, Vigyan covered by that system, and we started practicing it a little bit. Then we all the time, our team members, which is quite a big team now, well, since 95 the action is going on, and more or less now we come to know that the other person is going to cheat us, and it is our choice that whether we should get cheated or not becomes my free will. And if the other person thinks that he has cheated, it's wrong. We decided to get cheated by that person because we knew that he needs that whatever cheating he is willing to do with us, he has actually a dire need of that, and we have sufficient, so we, even if we lose that money to make and he remains happy, so we decided to get cheated. So there is a difference between the two. Our agreeing to get cheated was, we told him that okay, you take this, whatever he wanted, and we gave it to him, and told him that there is no point cheating. And when he went back after maybe a month. We went to we were visiting that place again, and the guy who told that, sir, वो आया था आपके लिए, आपको पूछ रहा था कि आप कहाँ रहते हैं। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? तो कहता है कि वो ना आपके पैसे वापस करना चाहता था। मैंने कहा ले, 2000 रुपये की तो बात थी, तो क्या वापस क्या करने की ज़रूरत थी? कहता है नहीं, उसने कहा कि मेरा उस समय में काम हो गया, मुझे ऐसा लगा कि मेरे को बिना जाने पहचाने अगर मेरी किसी ने हेल्प करी है तो मुझे वो पैसे वापस करने चाहिए। तो मैं तो था नहीं वहाँ पर, तो मैंने कहा फिर? कहता है जी, वो कहते हैं हमें उनका घर का हमें नहीं पता, उनको पता भी नहीं था कि दूर जगह है वहाँ पर। हम कभी महीनों में कभी एक आध चक्कर लग गया उधर की तरफ।
तो मैंने कहा अगर अब की बार बाई चांस आता है दोबारा से तेरे पास, तो उसको कहना कि जैसे मैंने तेरी हेल्प करी ऐसे ही तू किसी और की हेल्प कर दियो, उस पैसे को मार्केट में ही रहने दो और जिसको ज़रूरत है उसको दे दो। तो वो मेरी शक्ल देख रहा था, पर उससे फ़र्क नहीं पड़ता, शक्ल तो वैसे भी देखता ही है मेरी। जब मैं जाता हूँ उधर तो उससे बातचीत तो होती है, दुकान है उसकी। तो ये सिस्टम हम लोगों ने फिर शुरू किया कि अगर तुझे ज़रूरत है तो तू ले जा पैसे, वापस हमें ना करके आगे दियो, जिसको कि तेरे को लगे कि हाँ इसको जेन्युइन ज़रूरत है तो उसको दे दियो। हमें भी तेरे को लगा, उन्होंने भी हमें भी तुम्हें दिए थे, क्योंकि हमें लगा तुम्हें जेन्युइन ज़रूरत है इसकी। हमें लगा, ज़रूरी नहीं है कि वो तुम्हारी जेन्युइन ज़रूरत है, नहीं, हमने चेक नहीं करने की कोशिश करी, ना हमें इंटरेस्ट, हमें लगा जेन्युइन ज़रूरत है। वी फील कन्विंस्ड आवर सेल्व्स। तुमने कहा था मेरे को पैसे चाहिए, अगर कुछ काम है, अगर नहीं हुआ तो मेरे को बहुत नुकसान हो जाएगा। मुझे लगा ठीक है लो। तो इस तरह की एक्टिविटी फिर हम लोगों ने थोड़ी थोड़ी शुरू की, तो उससे हमें लाभ बहुत हुआ। ये लाभ नहीं हुआ कि हमें लोग जानने लग गए या कुछ ना, पर हमें इंटरनल सेटिस्फेक्शन लगी। हमें पता लग गया कि हम समझने लग गए हैं कि कोई हमें चीट कर रहा है, तो उस चीटिंग में वो अपनी हेल्प के लिए चीटिंग कर रहा है या अपनी लग्जरी के लिए, अपने मतलब उसको गलत काम करने के लिए चीटिंग कर रहा है। वो जो पैसे लिए उससे दारू भी तो पी सकता था, और फिर झगड़ा करता या किसी को कुछ हथियार खरीद के किसी को मारने के चक्कर में लग जाता, कुछ भी हो सकता है। जो सामने वाले को आप जानते ही नहीं हो तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब हमने ये अभ्यास शुरू किया, हमने मतलब समझने की कोशिश शुरू करी फाउकोलॉजी सब्जेक्ट की ब्रांचेस को, और उससे हमें काफ़ी कुछ समझ में आने लगा। फिर जैसे कल के वीडियो में अब टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं हम लोग, रिजेक्शन रिड्यूसिंग टू ज़ीरो, और वेस्टेज को, रिजेक्शन वेस्टेज में फ़र्क समझने की कोशिश कर रहे हैं। और रिजेक्शन को तो बिल्कुल एलिमिनेट करना है और वेस्टेज को रिड्यूस टू ज़ीरो करना है। वेस्टेज कभी ज़ीरो नहीं हो सकती, पर ऐसा करना है कि वेस्टेज से हमारे कम से कम हमारी जो प्रॉब्लम है, जो वेस्टेज हमें शरीर में जो तंग करती है, बीमारी के रूप में बन जाती है, कैंसर तक बन जाता है वेस्टेज से, वो ना बने, हम उन चीज़ों से छूट जाएं। तो मैं कहूँगा कि आज ना मेरे को ये पीली टी शर्ट मैंने जान करके पहनी है। आज से टेक्नोलॉजी गोस पीताम्बर। इसका मतलब क्या? पीताम्बर पता है किसको कहा जाता है? आपको शायद मालूम ही होगा इस बात का। पीताम्बर कहा जाता है कृष्ण को। कृष्ण का एक नाम पीताम्बर भी है। पीताम्बर यानी जिसके पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं जिसने। तो कृष्ण प्रिसाइजली उन्होंने ही बीज डाला था चीटिंग फ्री वर्ल्ड बनाने का, और जो लोग उनको समझ में आ गया था कि ये लोग नहीं मानेंगे, तो महाभारत करवाई। वो कहा ना, उसने 5 गांव मांगे थे कि 5 पांडव है, 5 को एक एक गांव दे दो, वो वहाँ पर रहते रहेंगे, अपना रहने की ज़मीन दे दो। 5 गांव दे दो से मतलब है कि रहने की ज़मीन दे दो, वो वहाँ रहते रहेंगे, और तुम अपना जो कर रहे हो करते रहो, अपनी राज्य चलाओ, जो मर्जी चलाओ, उनको राज्य में कोई इंटरेस्ट नहीं है, गाँव दे दो। तो उसने कहा था मैं सुई के नोक के बराबर भी जगह नहीं दूंगा। दुर्योधन ने कहा था ये, ऐसा सुनने में आया। तो उसने ये क्यों कहा? और सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं देगा, ऐसा कैसे हो सकता है भाई? जो अगर यहाँ पर हो तो रहोगे तो सही ना कहीं ना कहीं। तो उसने कहा था कि जंगल में जाके रहो, गांव नहीं दूंगा। अज्ञातवास तो था ही, वो 14 साल का वनवास तो उन्होंने काटा ही था, जानते हैं इस बात को। और 14वां साल उनका अज्ञातवास का था, जो पहचान लिए गए तो अगले 14 साल के लिए फिर जाना पड़ेगा। ये 14 ही क्यों? 14 साल का क्या कंसेप्ट है? अब हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, सारी चीज़ें समझेंगे और हर चीज़ समझेंगे टेक्नोलॉजी के एंगल से। नो साइंस, नो विज्ञान, नथिंग। नो ज्ञान, नो विज्ञान, नथिंग, ओनली टेक्नोलॉजी। और टेक्नोलॉजी के एंगल से समझेंगे और फिर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। जो यूज़फुल होगा उसको यूज़ करेंगे, जो नहीं यूज़फुल होगा उसको रिजेक्ट करेंगे। हम वही करेंगे। तो हमने समझा
फाउकोलॉजी के माध्यम से ही कि चीटिंग फ्री वर्ल्ड बन सकता है, बहुत आराम से बन सकता है। क्योंकि चीटिंग जो है, चीटिंग का जो पहला रिजल्ट होता है वो डेवलप होता है उससे लालच। क्यों? क्योंकि चीटिंग में आपने कितना, जो आपको एक्सपेक्टेड तो था नहीं, वो दे देगा कि नहीं देगा, मैं उसको चीट कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, डाउट, एप्रीहेंशंस, और वो इतना मिल गया कि फिर वो चीटिंग की आदत पड़ गई। तो चीटिंग डेवलप करता है लालच को, और लालच डेवलप करता है ईर्ष्या को। ये सीक्वेंस है। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि चीटिंग फ्री वर्ल्ड बना देंगे, और चीटिंग फ्री वर्ल्ड में टारगेट ये है कि मेरे से कोई चीट ना करे। कृष्ण ने यही कहा था कि कृष्ण को छलिया कहा जाता है, पता नहीं क्यों कहते हैं, पर हमने ये समझा कि क्योंकि उसको हर प्रकार के छल का पता था। विष्णु को छलिया कहा जाता है, और विष्णु के पूर्ण अवतार तो थे ही कृष्ण। तो मतलब ये हुआ कि उनको, हमने ये समझा कि उनको हर प्रकार के छल का ज्ञान था, इसलिए उन्होंने अपने आप को वो किया, मतलब उनको छलिया कहा लोगों ने, तो उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं करी। वैसे वो ऑब्जेक्शन किसी चीज़ पे भी करते नहीं थे, क्योंकि वो पूर्ण अवतार थे, सब कुछ था उनके पास, तो उनको किस चीज़ पे ऑब्जेक्शन है? तू कह रहा है तू भी ठीक है, तू कह रहा है तू भी ठीक है। पर जो ठीक है उसको एस्टैब्लिश करने के लिए फिर युद्ध होना है तो युद्ध हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कृष्ण जो कि महाभारत को हर हाल में रोक सकते थे, अगर अपने आप को वो प्रोजेक्ट करते कि मैं सबसे बड़ा हूँ तो मैं डिसाइड करूँगा युद्ध होगा कि नहीं होगा, और युद्ध रोक सकते थे। 5 गाँव वो पूरा का पूरा हस्तिनापुर छीन करके दे सकते थे। कृष्ण की समर्थता को तो कौन नहीं जानता। कंस का संहार किया था उन्होंने, कंस को मारा था उन्होंने, अपने हाथों से मारा था। तो पर कृष्ण ने कहा नहीं, इन्हीं को डिसाइड करने दो, मैं तो सिर्फ एक किस्म से एक चलो रथ चलाने वाला बन जाता हूँ कि हिस्सेदार, मैंने महाभारत में हिस्सा लिया, पर वो बना मैं इसलिए हूँ क्योंकि अर्जुन ने मांगा था मेरे को, इसलिए मुझे आना पड़ा, नहीं तो मेरे को महाभारत में आने की ज़रूरत नहीं थी। आप लोग सेल्फ सफिशिएंट है, सारे के सारे लड़ सकते हैं, नियम बना सकते हैं, जो करना चाहो, और नियम तो आप लोगों ने बनाया, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। और वो जानते थे कि छल होगा। महाभारत में छल की पराकाष्ठा दिखाई गई है, यानी उस लेवल का छल तो अब सोच भी नहीं सकता कोई। तो छलिया कृष्ण नहीं थे, पर कृष्ण हर छल के जानकार थे। छल तो किया लोगों ने, पर कृष्ण को पता था कि ये जो लोग छल कर रहे हैं, इससे अल्टीमेटली सोसाइटी को फायदा ही होने वाला है। तो उन्होंने महाभारत कराई। महाभारत का परिणाम सबको पता ही है कि पुरुष, जो योग्य पुरुष थे, वो सारे के सारे काम आ गए, कंप्लीट, टोटल, और सारी स्त्रियां और बच्चे रह गए, या वो पुरुष रह गए जो अपंग थे, या जो मतलब आधे अधूरे काम करने वाले जो मनुष्य थे, बिल्कुल ठीक थे, पर वो काम नहीं कर पाते थे उतना जो करने की ज़रूरत है। कोई 10%, कोई 15% अपना कंट्रीब्यूशन कर पाता था, कोई 20%, और कुछ अपंग थे, दिव्यांग, जिनको आजकल दिव्यांग कहा गया है, क्योंकि वो उनको युद्ध में लड़ने की, हालांकि वो भी युद्ध में लड़ना चाहते थे, पर उनको युद्ध में लड़ने की वो नहीं थी, परमिशन नहीं थी, आई वुड से। तो आज से हम लोग ये कहेंगे
कि आज से टेक्नोलॉजी पीताम्बर हो गई है, यानी हम हर तरह के छल को समझ करके और अपने आप को छल से बचाने के लिए तैयार कर रहे हैं। और फाउकोलॉजी ने वो सारे सिस्टम दिए हैं जिनका अगर हम अभ्यास करें, प्रैक्टिस करें, तो ये गारंटी है कि आप छले जा सकते हैं, प्रोवाइडेड आप तैयार हैं छले जाने को। वो कहते हैं ना, बच्चे ने वो बाबा जी को, अपने ग्रैंडफादर को छल लिया तो उनको ले गया बाज़ार में और टॉफ़ी खा ली, उनसे टॉफ़ी खरीद के खा ली। तो इसमें नाना जी का कसूर नहीं है कि उन्होंने टॉफ़ी खिला के गलत काम किया। उन्होंने कहा बच्चे को, मतलब आप समझ सकते हो कि मैं रिलेशनशिप की किस तरह की बात कर रहा हूँ, उसको दोनों एंगल से देखा जा सकता है। पर बच्चों से हम छलने को तैयार हो जाते हैं जानते हुए भी कि, क्योंकि बच्चे तो निश्चल होते हैं, उनको पता ही नहीं वो छल कर रहे हैं, कि उनको तो टॉफ़ी खाने से मतलब है। तो आज से, और कृष्ण ने अपने आप को बड़ा साबित करने के लिए कि मैं सबसे बड़ा हूं, उन्होंने सबके छल को देखा, कहा किसी को कुछ नहीं, क्योंकि उनको पता था कि ये जो सारे छल कर रहे हैं, इसका अंत में जो परिणाम होगा वो समाज के लिए फायदेमंद होगा। अगर ये लोग रहे तो समाज कभी भी सभ्य बनेगा नहीं। और वो तो एक परिवार के थे लोग, एक ही परिवार के लोग थे, मतलब उनके ग्रैंडफादर तो एक ही थे। दुर्योधन के पिता धृतराष्ट्र, पांडवों के पिता पांडव, और उन दोनों के पिता एक। तो आप ये समझ लें कि जब सभ्य परिवार में, तो सभ्य परिवार ही नहीं है तो सभ्य समाज कैसे बनेगा। जब परिवार ही सभ्य नहीं है, या हस्बैंड वाइफ जो है उनका ही रिश्ता सभ्य नहीं है, तो परिवार कैसे बनेगा सभ्य, और फिर समाज सभ्य कैसे बनेगा। और चाहते सब सभ्य समाज में रहना है, सबकी इच्छा है कि हम सभ्य समाज का हिस्सा बने। तो तभी बन सकते हैं जब मैं इंश्योर करूं कि मेरे को कोई मूर्ख ना बना दे, मुझे कोई छल ना ले, मेरे को कोई ठग के ना ले जाए। तो उस प्रोसीजर में चलते चलते कल हम बात कर रहे थे कि अब टेक्नोलॉजी की बात है, तो कल हम इस पॉइंट पर पहुंच गए थे कि लाइफ डिजिटल होनी चाहिए जबकि एनालॉग है। तो आज हम कोशिश कर रहे हैं कि इसके फर्क समझें कि एनालॉग और डिजिटल में फर्क क्या है। और एक्चुअली लाइफ ही डिजिटल है, बाकी सारी चीज़ें एनालॉग है। आपका कंप्यूटर सिस्टम एनालॉग ही है, डिजिटल नहीं है। कहने को वो डिजिटल है पर डिजिटल नहीं है। क्यों? क्योंकि डिजिटल में लेवल ही दो होते हैं, या जीवित या मरा हुआ, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। और एनालॉग में तो भैया सारा कुछ है, बीमारियां, हर तरह की बीमारियां एनालॉग हैं। एनालॉग मीन्स सम ऑफ ऑल डिजीजेस, सम ऑफ फिजिकल डिजीजेस, सम ऑफ मेंटल डिजीजेस, सम ऑफ स्पिरिचुअल डिजीजेस, सम ऑफ एनर्जी डिजीजेस, सम ऑफ एनर्जी ट्रांसफर डिजीजेस। बस ये सारा एनालॉग है। आपकी कोई भी वस्तु आप देख लो उठा करके तो वो एनालॉग है। वो कहते हैं ना, प्लास्टिक जब से आया है, जब से बहुत सारी प्रॉब्लम्स बढ़ गई हैं। मुझे नहीं पता, जब अगर प्रॉब्लम कर रहा था तो ये मार्केट में दिया क्यों? फिर ये कहना शुरू कर दिया कि अब किसी चीज़ के नुकसान है, किसी चीज़ के, जिस चीज़ के नुकसान है तो फायदे हैं, तो नुकसान भी तो होंगे ही। तो
वो फायदे और नुकसान फायदा एक लेवल हो गया, नुकसान एक लेवल हो गया, और किसी में कम है, किसी में ज़्यादा है, किसी में कम है, किसी में ज़्यादा है। एनालॉग यही तो होता है, और क्या होता है? एनालॉग क्या होता है? यही होता है एनालॉग। तो डिजिटल क्या होता है? नहीं है, बात खत्म। मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास गाड़ी नहीं है। और एनालॉग क्या होता है? मेरे पास गाड़ी तो है, पर यार कभी पंचर हो जाती है, कभी ये होता है, उसको तेल रोज चाहिए, उसको फलाना रोज चाहिए, उसको ठिकाना रोज चाहिए। डिजिटल मीन्स परफेक्ट लाइफ। सनातनता जो है, एक शब्द है सनातनता। सनातनता मतलब जिसका ना आदि है ना अंत है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब आप ग्रो कर जाते हैं, आपकी हाइट बढ़नी बंद हो जाती है और शरीर का गठन पूरा हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। पूर्ण पता है कब होते हैं? 16 साल की उम्र, 16। कृष्ण बता कर गए हैं ये बात। कृष्ण 16 कला पूर्ण थे, पूर्ण अवतार कहा गया उनको। तो 16 जो शब्द है वो उम्र से रिलेटेड है। 16 साल की हेक्साडेसिमल सिस्टम, वो कंप्यूटर सिस्टम सारा हेक्स पे ही चलता है। तो उसकी जो फाउंडेशन थी, उसकी नींव थी, कृष्ण ने रखी थी। याद रखना आप इस बात को। उससे पहले जो सिस्टम चलता था, जिसको फुट पाउंड और एफपीएस सिस्टम कहा जाता था, एस मतलब सेकंड होता था, क्या होता था मुझे नहीं पता, आप देख लेना। एफपीएस सिस्टम चलता था, अब सीजीएस चलता है। हम टेक्निकल बात कर रहे हैं, सारी की सारी टोटल टेक्निकल। तो जो पहले वाला सिस्टम था, उसमें 1 फुट में 12 इंच होते थे, आज भी होते हैं, पर उस सिस्टम के दिए हुए हैं एफपीएस के। और आपको पता है 12 का सिस्टम किसने दिया था? और सबसे ज्यादा ड्यूरेशन चला है वो सिस्टम दिया हुआ था राम ने। राम जो है 12 कला के अवतार थे, विष्णु के 12 कला के अवतार राम थे, और 16 कला के कृष्ण। तो राम को, दशरथ के पुत्र राम को हमने एक्सेप्ट किया आज तक भी। त्रेता युग कब की बात कर रहे हैं हम? अगर 43, हमारे को पता है महायुग जो है 43 लाख साल का कहा गया है, अप्रोक्सीमेटली 43 लाख कुछ हजार साल। तो उसमें सतयुग जो है, कलयुग को पहले लेंगे, आजकल कलयुग चल रहा है, तो 4,32,000 साल का होता है। उसका दुगना द्वापर, उसमें कलयुग के टाइम जोड़ दो तो त्रेता, और उस तीनों के टाइम जोड़ दो तो सतयुग। तो त्रेता युग कम से कम तकरीबन 12 लाख साल का होता है। तो आप ये कहोगे कि इसका मतलब राम 12 लाख साल पहले आए थे, सॉरी, हाँ 12 लाख साल पहले आए थे। तो नहीं, ऐसा नहीं है। यहां पर जो समझने वाली बात है वो ये है कि राम जब आए थे तो उसके बाद त्रेता खत्म हुआ था और द्वापर शुरू हुआ था। तो अवतार एंड में आए थे, तकरीबन एंड में आए थे। ऐसे ही कृष्ण जब आए थे तो द्वापर खत्म हुआ और कलयुग शुरू हुआ था, कलयुग की शुरुआत करी गई थी। तो ये आपने, मतलब हम मेनली बात तो एनालॉग और डिजिटल लाइफ की बात कर रहे थे। तो लाइफ डिजिटल है, ये सनातनता नहीं, ये तो मतलब पहले कब से चली आ रही है। सनातनता जो है, सनातनता का मतलब ये है कि जब लाइफ के रिस्पेक्ट में हम बात करते हैं, हम लोग प्रैक्टिकल सनातनता की बात करते हैं। निश्चलिज्म यानी प्रैक्टिकल सनातनता है, नहीं है डिजिटल। और सनातनता होनी क्यों जरूरी है? आदि से अंत तक। आदि कब होता है? जब आप पैदा होते हैं या पेट में आते हैं। अब आदि किसको मानोगे? आपके आप पेट में आए तब को उसको आदि मानोगे, या आप पेट से बाहर आए तब उसको आदि मानोगे? तो फैक्ट ये है, सत्यता ये है कि आदि माना जाता है। 16 साल के जब आप हो जाते हो तो उसको आदि माना जाता है। और
16 साल के से लेके जब आप शरीर छोड़ोगे, 80 साल, 70 साल, 100 साल, 125 साल, 150 साल, 500 साल, 1000 साल, 5000 साल, 20,000 साल, 1,00,000 साल, आई डोंट केयर। पर जब आप शरीर छोड़ोगे तो आपका शरीर ऐसा ही होना चाहिए जैसा 16 साल में होता है। एवरेज की बात कर रहा हूँ मैं, बीमार कोई रहा है शुरू से तो उसको मैं नहीं कह रहा हूँ, गिन रहा हूँ। हम एवरेज ह्यूमन उसकी बात कर रहे हैं, सनातनता की बात कर रहे हैं हम, उसके अलावा कोई बात कर ही नहीं रहे हैं। सनातनता डिजिटल होती है, और जब मनुष्य 16 साल का हो जाता है, मनुष्य की बात कर रहे हैं हम लोग, मनुष्य योनि शरीर की, बाकी से हमें कोई मतलब नहीं है। तो 16 साल के जब आप हो तो वो आपका आदि है, और अंत जब भी होगा, रूल ये है कि आपको षोडशी रहना है। यानी 16 साल के आप हो तो आपकी उम्र की गिनती चाहे कितनी भी बढ़ जाए, पर आपका एनर्जी लेवल, आपका जो ज्ञान बढ़ता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आपके शरीर की जो कंस्ट्रक्शन है, जो कंपोजिशन है, उसमें डिटीरियोरेशन नहीं होना चाहिए, उसको मेंटेन रखना है। आप देख सकते हैं स्वामी रामदेव जी, मेरे ख्याल से जब 16, 17, 18 साल के ही होंगे, जब से वो वहाँ गए हैं, घर छोड़ के कब चले गए थे, वो तो 5-6 साल की उम्र में शायद चले गए थे, मुझे नहीं मालूम। पर अभी भी अब उनकी उम्र कितनी होगी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, मेरे ख्याल से 55-60 के बीच में कहीं होगी। तो देखने में वो क्या लगते हैं, उनके एक्शन देखो, आप एक्टिविटी देखो। बताइए, रियल लाइफ एग्जांपल की बात कर रहा हूँ मैंने तो और भी एग्जांपल दिया, 150-150 साल के लोगों से मैं मिला हूँ, और उनकी उम्र लगती ही नहीं कि वो 50 से ज़्यादा के हैं, 40-50 से ज़्यादा के हैं, और वो भी उस टाइम पे उनकी उम्र ऐसी होगी क्योंकि सारे जो नॉर्मली क्या होता है, दिक्कत क्या होती रही है, जो कि अब नहीं होगी, क्योंकि अब लाइफ जो है जब हम डिजिटल समझते हैं तो फिर तो बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। हमें लग जाता है, संभावना दिखने लगती है कि यार हम तो 16 साल के सारी उम्र रह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर रामदेव जी को आज देखो तो 25-26 साल के, 30 साल से ऊपर तो किसी भी हालत में नहीं लगते, बल्कि मेरे ख्याल से 30 साल के लगते नहीं हैं, कम ही लगते हैं। कितनी एफर्ट करते होंगे उन्होंने, इतना बड़ा सेटअप शुरू किया है, उसमें कितनी मेहनत करते होंगे, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं उसका। वो सोते ही नहीं होंगे मेरे ख्याल से, तो 1 मिनट भी उनको सोने को नहीं मिलता होगा, 1 मिनट भी। आज तक कोई ऐसा वो नहीं हुआ, मैं कहूँगा कि आज तक कोई ऐसा बिजनेसमैन नहीं हुआ, कोई ऐसा कॉरपोरेट नहीं हुआ जिसने इस तरीके से इतना राइज किया हो। कारण उनकी थिंकिंग हमेशा 16 साल की रही। रामदेव जी की सक्सेस का रीज़न ही एक है कि उनकी थिंकिंग जो है वो 16 साल की रही, एनर्जी लेवल उन्होंने 16 साल की का ही मेंटेन करके रखा। आज भी आप टीवी पे उनके प्रोग्राम देखो तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो 16 साल की उम्र को आज भी मेंटेन करते हैं। वो लाइफ को डिजिटल रखना है, लाइफ डिजिटल ही होती है, तो उसमें एनालॉग को मत आने दो। अगर आ गया है तो उसको निकाल के फेंक दो, और वो बहुत आसान है। श्वास योग, श्वासपैथी, पतंजलि योगा अवेलेबल है, शंख योगा, कितने सारे सिस्टम फाउकोलॉजी ने अवेलेबल करवा दिए हैं आपको लाइफ को डिजिटल रखने के लिए। एनालॉग को निकालो तुरंत, जितनी जल्दी हो सकता है एनालॉग से पीछा छुड़ाओ, और एनालॉग से पीछा छुड़ाना ही है। एनालॉग का मतलब है बीमारी। अगर आप एनालॉग में लाइफ रहते हो तो बीमारी, उसको हम लोग अब कन्वेंशनल कहते हैं। एनालॉग मीन्स कन्वेंशनल, लाइफ शुड बी डिजिटल, शिफ्ट, माइग्रेट। आज के दिन को हम लोग पीताम्बर डे के नाम से सेलिब्रेट किया करेंगे। सभी लोगों को, ये श्वास योगियों को खासकर, बाकी सभी लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि आज के दिन से हम लोग पीताम्बर दिवस के रूप में मनाएंगे आज के दिन को, और प्रण लेंगे कि हम लोग एनालॉग लाइफ को छोड़ करके डिजिटल लाइफ पर शिफ्ट करेंगे। हम भी करेंगे, अपने आने वाली जनरेशन को करेंगे,
गाइड करेंगे कि डिजिटल पर शिफ्ट हो, और पीछे वाली जनरेशन को तैयार करेंगे कि आप भी अपनी लाइफ को डिजिटल बनाओ। और ये बहुत ज़रूरी है और बहुत आसान है, साधारण है, बस एक्सेप्ट करने की देर है। प्रैक्टिकल सनातनता प्राप्त करना फाउकोलॉजी ने बहुत आसान बना दिया है। तो मेरी ये एडवाइस है, सजेशन है, और अगर चाहो तो, क्योंकि अब मैं सीनियर सिटीजन कैटेगरी में आ गया तो ऑर्डर भी दे सकता हूँ, खासकर यंगर जनरेशन को, 40 साल से नीचे वालों को। और 40 साल से ऊपर वाले तो मेरी बात मान ही लेते हैं, उनको तो मैं देख लिया, क्योंकि वो कहते हैं तो हमारे साथ ही है, तो ये जो कह रहा है ठीक ही कह रहा होगा, क्योंकि हम इसको पिछले 10 साल से देख रहे हैं, 15 साल से। तो पीताम्बर दिवस पर हम लोग प्लेज लेते हैं, मैं लेता हूँ और मेरे साथ सभी लें जो लेना चाहे, और आज नहीं तो कल लेनी तो पड़ेगी, क्योंकि एनालॉग लाइफ से तो सारे दुखी हैं। एनालॉग लाइफ ने हमें यहाँ पहुँचा दिया कि आज सारे के सारे युद्ध करने को तैयार हैं। महाभारत के टाइम के ऊपर वापस पहुँचा दिया कि इस समय सारे युद्ध करने को तैयार हैं। और आप सोच सकते हैं कि एक एक के पास ऐसे ऐसे हथियार हैं जो पूरी पूरी पृथ्वी को नष्ट कर सकते हैं। तो पृथ्वी को नष्ट करने की जरूरत है क्या? कोई ज़रूरत नहीं है। तो आज पीताम्बर दिवस पर हम लोग 28 जुलाई पीताम्बर दिवस पर हम लोग प्रण लेते हैं, संकल्प लेते हैं कि हम अपनी लाइफ को डिजिटल बनाएंगे, यानी प्रैक्टिकल सनातनता अपनाएंगे और डिजिटल बनाएंगे। उसके लिए हमें जो भी सीखना पड़े सीखेंगे और अभ्यास करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अश्विनी कुच्छल youtube.com चैनल पर आप ये वीडियोस देख सकते हैं, और कृष्णांश कथा में ये इसी टॉपिक के ऊपर बात की जाती है। तो कृष्णांश कथा हर शुक्रवार को 4 बजे से हुआ करेगी। पहले इतवार को और शनिवार को 7 बजे होती थी, अब ये सिर्फ एक दिन होगी, शुक्रवार को 4 बजे इसका टाइम रखा गया है। तो आप लोग चाहें तो FB लाइव पर इसको देख सकते हैं। 4 बजे शुक्रवार को 4 बजे शाम के इवनिंग 4 PM पर ये अवेलेबल होगी। FB लाइव पर चलती है कृष्णांश कथा हर शुक्रवार को 4 बजे, तो आप देख सकते हैं। अश्विनी कुच्छल YouTube पर ये वीडियोस अवेलेबल हैं, देख सकते हैं। FB लाइव के वीडियोस जो सेव होते हैं वो देख सकते हैं, आप कभी भी देख सकते हैं। तो आज का पीताम्बर दिवस की सबको शुभकामनाएं और निमंत्रण।